मैम Yes, ma'am. आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। लास्ट लेक्चर में आई टोल्ड यू कि लॉकडाउन हो जाएगा एंड आफ्टरवर्ड्स हमें ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ेगी. अब देयर आर 91 ऑफ यू who are attending this lecture. We will talk about the lymphatics. Can you share my can you see my slides? Yes, ma'am. Okay, the lymphatic system we talked about capillaries की exchange में हमने बात की थी कि कैपिलरी से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड आता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है. अब लिम्फेटिक सिस्टम्स उसको पिकअप करते हैं और आगे ट्रांसमिट करते हैं बैक इनटू द सर्कुलेशन. सो इट इज अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स that assist in the circulatory system. ये closely associated with the cardiovascular system. It transports from the interstitial space and then it transport back into the bloodstream. क्या transport करता है? जो चीजें निकल जाती हैं जैसे fats. और it also help the body against the diseases. अगर आपने blood में पढ़ा था blood physiology में तो आपको याद होगा कि lymph nodes और lymphatic system का effect था. ये स्पेशल लिम्फेटिक सिस्टम है लेकिन ये कहाँ पे या मौजूद नहीं होता. इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सुपरफिशियल पोर्शंस ऑफ द स्किन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंडोमाइसियम ऑफ द मसल्स एंड द बोन्स. इसके अलावा ये सब जगह इट इज प्रेजेंट. Look at the connection between the vessels and the lymphatic system. इन दोनों के दरमियान में से ये पास करता है and it picks it up. ये जो एरिया होता है this is a closed end tubes. हो गया था. Yes, ma'am. आपकी आवाज आ रही है. थैंक यू. लिम्फ वेसल्स जो है ये जो वेनस सिस्टम है और आर्टीरियल सिस्टम है इसकी जो कैपिलरीज होती है इसके दरमियान में से ये पास हो रहा है और यहाँ पे ये क्लोज्ड एंड ट्यूब्स होती हैं. Again another picture which is showing कि ये जो fluid है it moves from the interstitial space through the lymphatics back into the circulation. इसमें इसी तरह कैपिलरीज डक्ट्स मौजूद होती हैं और इसकी ये 3 लेयर्स होती है. एंडोथेलियल लाइनिंग, स्मूथ मसल और कनेक्टिव टिश्यू. आउटर साइड पे कनेक्टिव टिश्यू है, there is smooth muscle and inner side there is endothelial lining. जो किया करो इस तरह बीच में ज्वाइन करवाऊंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी. Larger vessels they lead to the lymph nodes and then to the lymphatic trunks. अगर आपको याद हो कि lymph nodes they are at the area of the lumbar, intestinal, intercostal, bronchomediastinal, subclavian और jugular. These are the sum of them. Right side पे right lymphatic duct होती है जो drain करती है upper right side of the portion of the body, and rest of the body is drained by the thoracic duct. These are the lymphatic capillaries which join to form the lymphatic conducting duct और फिर subclavian vein में drain कर देती है. जो lymph होता है it is a tissue fluid that has entered the lymphatic capillary और lymph formation is dependent upon the tissue fluid formation. Tissue fluid कहाँ से बना था? ये प्लाज्मा से बना था.
ये प्लाज्मा से बना था और उसके बाद यहाँ it contains the water and dissolved substances. It also contains smaller proteins which creates the colloid osmotic pressure. रिजल्टेंट फ्लूइड जो बना था वो लिम्फ है, और अगर इस प्रोसेस को हम किसी वजह से प्रिवेंशन हो जाती है तो दिस देयर इज दिस accumulation of the excess tissue fluid and it is called as the edema. Lymph का function क्या है? It absorbs the dietary fats, it delivers the fat back to the bloodstream. Excessive tissue fluid drain होता है और foreign particles they are also passed to the lymph nodes. This is the closed end tube of the lymph. इस तरह the fluid is moved and these are the anchoring filaments. In anchoring filaments are basically connected tissue to this lymphatic vessel. क्योंकि ये free end है, इसकी lymphatic जो veins हैं उसकी तरह की situation नहीं होती. This is the fluid pressure on the outside of the vessel. ये push करता है endothelial cells को, and the free edges they move away and the interstitial fluid then moves into the lymphatic. Another picture, another. Lymph movement is more or less similar as compared to the venous system. जैसे मैं हमने उसमें बात की थी, it is because of the action of the skeletal muscle, respiratory movements, or the smooth muscle in the larger lymphatic vessels. इसमें valves भी मौजूद होते हैं. And this is the structure of the lymph node जो आपने anatomy में पढ़ा होगा कि एक तरफ इसके हाइलम होता है जहाँ पे आपकी vessels train करी होती हैं, और in the center there is this medulla, और यहाँ पे macrophages T cells मौजूद होते हैं. अभी मैंने आपको लोकेशन ऑफ द लिम्फ नोड्स बताई हैं. दीज आर फ्यू एरियाज जैसे सर्वाइकल, एक्सिलरी, सुप्राट्रॉक्लियर, इंग्वाइनल, पेल्विक, एब्डोमिनल एंड द thoracic cavity. लिम्फ नोड्स करते क्या हैं? दे फिल्टर पोटेंशियली हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम द लिम्फ. ये immune surveillance है by the macrophages and lymphocytes, and there are areas of the lymphocyte production. This is the thymus which is a small in adult, लेकिन बच्चों में बहुत बड़ा होता है, उसके बाद ये regress कर देता है. This is the site of the T cell production, or the basically the specialization of the T lymphocyte. It also secretes the thymosins. Spleen, it's a large lymphatic organ. It is located in the upper left quadrant. It has white pulp जिसमें lymphocytes होती है, and then there is this red pulp which is constituting the RBCs, the lymphocytes and the macrophages. Lymph is formed in the liver. It has a higher protein concentration as like 6 grams per deciliter. It is also formed in the intestines, or इसमें protein concentration is around 3 to 4 grams per deciliter. (120 milliliters per hour is transmitted. जो amount होती है, it is around 120 milliliters per hour, 2 to 3 liters per 2 to 3 liters per day. ये lymphatic vessels में मैम आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट है, बल्कि आ ही नहीं रही.
Can you hear me? Yes, ma'am. यस मैम। मैम आपकी डिस्टॉर्टेड आवाज आ रही है, क्लियर नहीं आ रही, कभी कभी आती है। ऐसे आवाज आती है आप लोगों को? यार लेक्चर हो रहा है, कोई बता दे। जी भाई हो रहा है। मैम डिस्टॉर्टेड है। It is a net problem basically जिस आती है। अब आपको आवाज ही नहीं आ रही? आवाज बहुत कट रही है। नहीं आ रही। अब नहीं आ रही? नहीं मैम आ रही है, अब आ रही है। Okay, I've changed the net. Basically, it's the net problem, not the device जिसमें problem होती है। Net की यहाँ पे connection distort हो जाता है। Okay, what are the determinants of the lymph flow? It is the increased fluid hydrostatic pressure and this leads to the increased lymph flow. 2 to 3 times हो जाता है। अगर जितना प्रेशर आपका ज्यादा होता जाएगा, यहाँ पे उतनी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी lymph flow की। We have talked about this. We have talked about कि ये करता है transport of the absorbed fat. It also returns the filtered protein. और अगर डिस्ट्रप्शन हो जाएगी कैपिलरी एक्सचेंज में तो दो मेजर कॉजेज होती है। एक ब्लॉकेज ऑफ द लिम्फेटिक ड्रेनेज, it is because of the cancer and the fibrotic growth, pathogens and the pregnancy, and then the because of the increased capillary filtration. Please kindly बाकी सब म्यूट कर लें। हमादुर रहमान साहब आप म्यूट करेंगे प्लीज? Venous pressure increase करता है because of the increased risk due to the right or left heart failure, और प्लाज्मा प्रोटीन्स कम हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द लिवर फेलियर। जैसे हमने उस दिन बात की थी कि लिवर में से प्लाज्मा प्रोटीन्स बनती हैं, और अगर सवेयर मैलन्यूट्रिशन हो जैसे क्वाशोकॉर होता है तो उसकी वजह से भी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर लेस हो जाता है। Edema is excessive accumulation of the extracellular fluid, which is because resulting from the high blood pressure, venous obstruction, या leakage of the plasma proteins, a low plasma protein level because of the liver disease, or obstruction of the lymphatic drainage. ये तीनों सिस्टम जो होते हैं कार्डियोवास्कुलर, डाइजेस्टिव या इम्यून सिस्टम, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, क्लोजली एसोसिएट। जो लिम्फेटिक सिस्टम का काम सिर्फ फिल्टर करके और प्रोटीन्स को वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं भेजना होता, इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट करता है फैट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें लैक्टेट्स इंक्लूडेड होते हैं, और ट्रैप करता है डील विद द पैथोजेंस। इफ यू रिमेंबर द ब्लड फिजियोलॉजी, हमने उसमें क्लियरली आपको बताया था। ये जस्ट कीप ऑन लुकिंग एट द पिक्चर्स ताकि आपको
याद हो रह जाए. He said that this is the lymphatic system of the stomach. कितने closely इसके lymph nodes और lymphatic system उसको drain कर रहा होता है. So ये it also removes the antigens from the body. It exposes these antigens to the immune system. सिर्फ ये नहीं होता कि ये इस तरह ये मूव करता है और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड को लेके जाता है, ये इम्यून सर्वेलेंस भी करता है. इम्यून सेल्स जो होते हैं दे आर कॉन्सेंट्रेटेड देयर एज एन एंटीजन. lymph nodes हर जगह मौजूद हैं, they act like a police. इसमें जो T lymphocytes हैं वो develop in the thymus, then pass back to the circulation. इसी तरह जो macrophages और dendritic cells हैं, they present the antigen in the lymph node. So basically it's the lymph node जहाँ पे ये antigens present होती हैं. How do the cells get there? Because of the presence of different सेल्स जो ब्लड में सर्कुलेट करेंगे वो उसको पकड़ के लेके आती हैं और उसको लिम्फ नोड में प्रेजेंट कर देते हैं. सो थाइमस में टी सेल की डेवलपमेंट होती है. टी हेल्पर सेल्स हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, और जो थाइमस एज सच प्रोग्रेसिवली स्मॉलर हो जाता है थ्रू आउट द लाइफ. Stem cells in the bone marrow, it produces the undifferentiated lymphocytes. Then it is passed to the thymus where the T lymphocytes it is processed. और जो T lymphocytes हैं वो एक mature T lymphocyte में बन जाता है. Through the blood transport it is passed on to the lymph node. यहाँ पे ये रहता है, reside करता है, और ये जो T और B cells हैं ये फिर blood में भी pass on हो जाती हैं to the different other organs और lymphatic ducts और spleen में, और कुछ undifferentiated lymphocytes इधर से transmit होते हैं और within the bone marrow and they form the B lymphocytes. How do these cells do when exposed to the pathogen? Any antigen proliferate करते हैं और फिर effective molecules बनते हैं, जैसे B cells antibodies बना देते हैं, helper T cells cytokines बना देते हैं, और जो cytotoxic T cells हैं वो cytotoxic granules को चेंज कर देते हैं उसमें, और इसकी वजह से macrophages और dendritic cells हैं ये present करते हैं antigens to the T cell. Look at here, this is the displaying antigen. ये आपका एंटीजन इसने पकड़ा है और इसको ये डिस्प्ले करा है. इसके कुछ पार्ट्स को ये ऊपर की तरफ अपनी तरफ एक्सपोज कर देता है ताकि बता देता है कि आई हैव गॉट द एंटीजन इनसाइड. द हेल्पर टी सेल जो इस एंटीजन को पकड़ लेगा वो इसको प्रेजेंट करेगा और यहाँ पे बी लिम्फोसाइट आ जाएगा और वो प्रोलिफरेट करेगा, बी लिम्फोसाइट हो जाएगा और इस तरह एंटीबॉडी और मैम आपकी आवाज कट रही है. लेट्स गो. ये सब कुछ हमने किया हुआ है इन द ब्लड, सो वी विल नॉट डू इट अगेन. आई थिंक सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड. क्या करें? 133 को क्या हो गया? मैम आपकी आवाज कट रही है. से इट अगेन. मैम आपकी आवाज क्लियर, मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. I'm sitting in the college with the best internet available and मैं इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकती. I can't come to your home. जब मैं क्लास में आती थी तो तब भी आप सुनना नहीं चाहते थे. अब जैसी भी आवाज आ रही है just go through the slides and try to see कि क्या है हो रहा है या क्या नहीं हो रहा. ओके मैम. उस वक्त मैंने आप लोगों को कहा था कि इस वक्त गौर से मैंने गौर से सुना था मैम. लो अगर आपने सिर्फ सुना था, आप कौन है? मैम इससे क्वेश्चंस पूछिए. क्या नाम है आपका? हसन नवाज चौधरी. इससे कुछ पूछ लूं.
छोड़ो, अभी कोई नहीं पूछे, हम ये खत्म कर ले। लेट्स फिनिश इन नेक्स्ट 2 लेक्चर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो जाए और अगर जिसने स्टार्ट किया था कल उसको पता चल गया होगा कि लेक्चर्स में कितना फर्क था, नहीं किया किसी ने तो फिर एंजॉय योरसेल्फ। देयर इज दिस लोकल एंड इम्यूनल कंट्रोल ऑफ द ब्लड फ्लो। कैन यू सी द स्लाइड? कैन यू सी द स्लाइड? नहीं मैम, ये सब आई है। Okay, this is the net problem, not mine. मैंने बहुत देर पहले अब आवाज इस तरह क्लियर है तो स्पेस वहां से रिमूव करने, मेंटेनेंस ऑफ iron concentrations, and we have to transport the hormones in the waste. ये वेरिएशंस मैंने आपको पहले डिस्कस की थी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड इन द डिफरेंट ऑर्गन्स। किडनी में 400 मिलीलीटर्स होता है, इसलिए इसमें ब्लड सप्लाई 1 लीटर पर मिनट होती है, और जो कार्डियक आउटपुट होता है उसका 5 लीटर्स निकलता है। कुछ अमाउंट लेस देन 1 लीटर इज पास्ड ऑन टू द ब्रेन, देन 0.2 अराउंड टू द हार्ट, अबव 1 लीटर इज मूव टू द लिवर, और बाकी कुछ स्केलेटल मसल किडनी में चले जाते हैं। वेरी लेस अमाउंट गोज टू द स्किन एंड देन द बोन एंड द टिश्यूज। देयर इज नथिंग टू मेमोराइज। इनएक्टिव ब्लड फ्लो जो मसल्स में जाता है, इनएक्टिव मसल्स में इट इज अराउंड 750 मिलीलीटर्स, लेकिन अगर आप एक्सरसाइजिंग में देखें तो 1600 मिलीलीटर्स। हाँ, लार्ज अमाउंट क्यों नहीं होती? बिकॉज हार्ट को हर वक्त बहुत हाई अमाउंट में काम करना पड़ेगा, इनएबिलिटी हो जाएगी, वो इतना ज्यादा पंप नहीं कर सकेगा, उसके ऊपर बर्डन ज्यादा हो जाएगा और वो फेल जल्दी हो जाएगा। What are the acute phases by this blood flow is controlled? It is the vasoconstriction or the vasodilation of the arterioles, meta-arterioles and precapillary sphincters. ये seconds or minutes में control होता है, and then there is this long-term control which is a better control, a slow control change आता है over weeks or months, जिसमें increase in the size and number of vessels मिलाकर। This acute control depends upon the tissue metabolism and the oxygen availability. कितनी It also depends upon the oxygen saturation. अगर आपकी oxygen saturation कम होती जाती है तो blood flow is increased, क्योंकि वो compensate करने की कोशिश करेगा। Local blood flow control is because of the 2 theories जो हमारा ख्याल है कि इस वजह से control होता है। One is the vasodilator theory and the other is the oxygen lag theory. सुन रहे हो या चले गए हो? मैम सुन रहे हैं। ओके फाइन, चलो एक हो गई वेसोडाइलेटर थ्योरी और एक हो गई ऑक्सीजन लैग थ्योरी। सो जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं इन एडजस्टिंग द आर्टेरियल रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज द वेसोकंस्ट्रिक्शन और वेसोडाइलेटेशन। मैंने वेसोकंस्ट्रिक्शन बताई थी, इट इज द नैरोइंग ऑफ अ वेसल, और वेसोडाइलेटेशन वाज द एनलार्जमेंट इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रेडियस। सो ये क्यों होता है वेसोडाइलेटेशन? बिकॉज ऑफ द पार्शियल टोन मेंटेन रहती है वेसल्स में। जब वो रिलैक्स होती है, ये स्मूथ मसल रिलैक्स होता है, इसका जो पार्शियल टोन है वो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो देयर विल बी वेसोडाइलेटेशन एंड लीड्स टू द डिक्रीज रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज फ्लो थ्रू आर्टेरियोल। अगर वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो ये इसका सर्कमफ्रेंस कम हो जाएगा, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द मायोजेनिक एक्टिविटी। इंक्रीज मायोजेनिक एक्टिविटी, इंक्रीज ऑक्सीजन, डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज एंडोथेलियम, यहाँ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से। अब अगर वेसोडाइलेटेशन होनी है तो वो जो स्मूथ मसल अंदर की तरफ मौजूद है वो रिलैक्स कर जाएगा, इसकी वजह से डिक्रीज रेजिस्टेंस आएगी, और जो रेडियस है या डायमीटर आपका वेसल का है वो इंक्रीज कर जाएगा। इसको हम कहेंगे वेसोडाइलेटेशन। इट अकर्स बिकॉज ऑफ द लेस मायोजेनिक एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया होगा तो ऑब्वियसली ये डायलेट करेगा ताकि मोर ब्लड इज सप्लाइड, more carbon dioxide and other metabolites, increase nitric oxide, less sympathetic stimulation. Arterioles पे affect, it can be because of the local application of heat or cold, chemical response or myogenic response.
वेसोडाइलेटर थ्योरी ये होती है कि अगर ग्रेटर मेटाबॉलिज्म है, लेसर ऑक्सीजन है, तो ग्रेटर द रिलीज ऑफ द वेसोडाइलेटर सब्सटेंसेस। कौन सी वेसोडाइलेटर सब्सटेंसेस होती है? एडिनोसिन, कार्बन डाइऑक्साइड, एडिनोसिन फॉस्फेट कंपाउंड, हिस्टामिन, पोटेशियम और हाइड्रोजन। मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगी तो वेसोडाइलेटर ज्यादा होंगे और आर्टीरियल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और लीड्स टू द इंक्रीज ब्लड फ्लो। एडिनोसिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वेसोडाइलेटर होती है जिसमें से हार्ट जो ब्लड फ्लो की डिक्रीज या इंक्रीज करता है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द एडिनोसिन। सेम मैकेनिज्म ऑफ द एडिनोसिन इज इन द स्केलेटल मसल्स। लेट्स लुक एट द ऑक्सीजन लैग थ्योरी। इसमें अगर ऑक्सीजन की लेस सप्लाई होगी तो ब्लड वेसल्स रिलैक्स करेंगे और डायलेट करेंगे। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स कंप्लीटली ओपन या क्लोज हो सकते हैं। ये हमने पहले भी बताया था। ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग साइक्लिकली है, दिस इज कॉल्ड एज अ वेसोमोशन। ये मैंने आपको बताया था, दिस इज एससीक्यू। ये पिक्चर भी मैंने आपको दिखाई थी कि बेड ओपन होता है और बेड क्लोज होता है। Then the oxygen it leads to the smooth muscle contraction। अगर ऑक्सीजन कम होगी तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा और स्मूथ मसल रिलैक्स कर जाएगा, जिसकी वजह से वेसोडाइलेटेशन हो जाएगी। The more metabolism, tissue metabolism or less oxygen delivery, it leads to the less tissue oxygen saturation, arterial resistance कम होगी and more blood flow। कौन से न्यूट्रिएंट्स अदर देन ऑक्सीजन होते हैं? दैट आर द लैक ऑफ द ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड द फैटी एसिड्स। देन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन्स लाइक थायमिन, नाइसिन एंड राइबोफ्लेविन, और दीस विटामिन्स दे आर नीडेड फॉर द ऑक्सीजन इंड्यूस्ड फॉस्फोराइलेशन। एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिव हाइपरईमिया। हाइपर मींस अबव नॉर्मल, ईमिया मींस ब्लड। इन हाईली एक्टिव tissues rate of the blood flow increases, जैसे exercising muscles हैं या brain during the rapid mental activity या GIT in the satiety phase। इसमें active hyperemia होता है क्योंकि वहां पे required है। What is reactive hyperemia? Hyperemia again is hyper means above, emia means blood, reactive means कि आपके पहले blood supply block कर दी थी for few seconds, उसके बाद आपने unblock की तो blood flow increase करेगी 4 to 7 times more। ये तब होता है जब आप इन्फ्लेट करते हैं कफ अबव द सिस्टोलिक प्रेशर। सपोज अगर आपने अपनी स्किन में देखना है और 1 मिनट के बाद आप रिलीज करते हैं तो वो आर्टेरियोल्स पे से जो आपका ब्लड है वो बड़ी तेजी से गुजरता है और इक्लूजन रिमूव हो जाती है और ब्लड फ्लो बहुत इंक्रीज करता है। इसका बेनिफिशियल इफेक्ट ये होता है कि ये रिस्टोर कर देता है केमिकल कॉम्पोजिशन टू द एरिया। So this is the diagram. Active hyperemia is whenever the tissue metabolism is increased, it leads to the release of the metabolic vasodilators, then the dilatation of the arterioles, less resistance, more blood flow, और oxygen और nutrients supply हो जाते हैं। अगर reactive hyperemia तो शुरू में tissue blood flow कम हो जाती है because of the occlusion, आपके metabolic vasodilators accumulate कर देते हैं और वहां पे फिर dilatation होती है arterioles की जब occlusion, लेकिन occlusion आपके ब्लड फ्लो को नहीं मेंटेन करती। अब आपने occlusion को रिमूव किया, लेस रेजिस्टेंस आएगी, मोर ब्लड फ्लो होगा और ये वेसोडाइलेटर्स आगे ब्लड फ्लो में पास ऑन हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको फील होता है कि आपने बेंड की नी और वहां पे वो नमनेस आ जाती है। व्हेन यू स्टार्ट मूविंग तो आपको सुइयां सी चुभती हैं। दैट आर बिकॉज ऑफ द वेसोडाइलेटर सब्सटेंसेस जो रिलीज होते हैं, जो वहां पे आपके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो गए थे वो सडनली रिलीज होते हैं। ये अक्यूट कंट्रोल है और दिस इज द लॉन्ग टर्म जो एक प्लेटू के फॉर्म में इस लॉन्ग कंट्रोल करता है। 2 थ्योरीज हैं ऑटो रेगुलेशन की, एक मेटाबॉलिक थ्योरी, एक मायोजेनिक। सो मेटाबॉलिक थ्योरी है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई पे डिपेंडेंट है और मायोजेनिक है कि सडन स्ट्रेच हो जाएगा। इंक्रीज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है तो स्ट्रेच करेगा वेसल्स को और वो रिएक्टिवली वास्कुलर कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, डिक्रीज कर देगा ब्लड फ्लो। Brain में in addition to the oxygen concentration there is this hydrogen and carbon dioxide concentration which is controlling the blood flow also। और endothelium derived relaxing factor होता है, EDRF इसको कहते हैं। ये इंटरमीडिएट आर्टरीज की तरफ मौजूद होता है और यहाँ से जो सेल्स ऑफ द एंडोथेलियल लाइनिंग है वो ये रिलीज करते हैं सब्सटेंसेस जो रिलैक्सेशन और कंस्ट्रिक्शन करते हैं।
most common जो EDRF है, it is the nitric oxide, which has a half life of 6 seconds. Half life means its amount is reduced and कितनी duration में उसकी amount half रह जाती है. That duration is called as the half life. Long term control is जो शॉर्ट टर्म कंट्रोल है फ्यू सेकंड्स में रहता है, जो लॉन्ग टर्म कंट्रोल है वो कुछ देर के लिए रहता है और फिर वो मेंटेन भी रखता है इन डेज. If the arterial blood pressure remains at 150, जो mean arterial blood pressure था वो 90s में था, तो within few weeks blood flow gradually reapproach कर देता है approximately this normal blood flow level. उसको आदत हो जाती है उस blood pressure की. Then there are changes in the tissue vascularity. अगर metabolism ज़्यादा होती है तो vascularity increase होती है, अगर उस एरिया की metabolism कम होती है तो उस एरिया में vascularity decrease हो जाती है. जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो जौन से लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके मसल्स में इंक्रीज ब्लड सप्लाई होती है, इंक्रीज वास्कुलरिटी होती है. यंग एनिमल्स होते हैं, अगर उनमें स्कार बन जाए तो फिर वो स्कार जल्दी हील हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यू वेसल्स. लेकिन इन एल्डरली पर्संस या न्यूनेट्स में जैसे फ्यू डेज लगते हैं तो मंथ्स लग जाते हैं एल्डरली में रिकंस्ट्रक्शन होने में. रिस्पॉन्स मच बेटर होता है इन द younger age as compared to the old. Long term control में oxygen plays an important role. For example, जो animals high altitude पे होते हैं या fetal chicks होते हैं वो hatch करते हैं लो ऑक्सीजन, और तो उसमें इसकी एग्जांपल आपको इस तरह दी जा सकती है कि अगर आपको एक इन्फेंट पैदा हुआ है और उसको आपने ऑक्सीजन टेंट के इंक्यूबेटर में रखा है और उसको ऑक्सीजन सप्लाई आपने एक्सेसिव अमाउंट की दे दी है, तो जब आपने एक्सेसिव अमाउंट की पहले इमीडिएट सेसेशन हो गया, आपने ऑक्सीजन उसको बहुत ज़्यादा दे दिया तो आपकी सेसेशन हो जाएगी न्यू वेसल ग्रोथ इन द रेटिना. कभी कभी वो वेसल्स जो हैं वो इवन डीजेनरेट कर देंगे. अब अगर आप उसको ऑक्सीजन टेंट में से बाहर निकाल लेते हैं तो अब वेसल्स को आदत हो गई थी कि हर वक्त इतनी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हो, अब वो नहीं हो रही तो वो ओवर ग्रोथ करेगी. वो इतना ज्यादा ओवर ग्रोथ करेगी कि विट्रस ह्यूमर जो कि क्लियर होता है ऑफ द वेसल्स वहां पे भी ग्रो कर देगा और इट लीड्स टू द ब्लाइंडनेस. अगेन दिस इज SEQ दैट इज कॉल्ड एज द रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया. इसमें होता है, रेट्रो मींस बिहाइंड, लेंटल मींस आपकी विट्रस बॉडी के पीछे, आपकी जो लेंस है उसके पीछे फाइब्रोप्लेजिया हो गया क्योंकि वो उस बंदे को अब नजर नहीं आ रहा, वहां पे वेसल्स ग्रो हो गए. एक बेबी बॉर्न हुआ है और आपने उसको ऑक्सीजन टेंट में रख लिया है, दैट इज अ प्रीमेच्योर बेबी. ऑक्सीजन टेंट में आपने उसको एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे दिया, आपकी न्यू वेसल्स ग्रोथ नहीं हो रही रेटिना में, इमीडिएटली सेसेशन हो जाएगी. कुछ वेसल्स इवन डीजेनरेट कर देंगे. अब आपने उस इन्फेंट को उस ऑक्सीजन टेंट पे से रिमूव कर लिया तो एक्सप्लोसिव ओवर ग्रोथ होगी, और ये जो ओवर ग्रोथ ऑफ न्यू वेसल्स है ये उस जगह पे भी आ जाएगी जैसे विट्रस ट्यूमर. Then the growth factors in the new vessel formation, जिसमें एंजियोजेनिक फैक्टर्स हैं जैसे वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, एंजियोजन. एंजियोजेनेसिस क्या होता है? दिस इज द रिप्रोडक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स. पहले कॉर्ड्स की शक्ल में आता है, फिर डिसॉल्व हो जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर ये फोल्ड होता है ट्यूब्स ऑफ दी सेल्स, उसके बाद वो बडिंग होती है और उसमें से न्यू वेसल्स बन जाती हैं. So the growth of the new vessel is called as the angiogenesis. This is because of the relevant cytokines जैसे cancer therapy, post MI is the myocardial infarction या में new vessels बन जाता है. Growth हो रही है और फिर मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. जब हमको वेसल्स कहते हैं. मैंने आपको लेक्चर में भी बता दिया था.
अच्छा, कोलेटरल्स का मतलब यही है कि एक जगह पे ब्लड सप्लाई किसी वजह से ब्लॉक हो जाती है, तो उसकी वजह से न्यू वेसल्स बन जाती हैं और इसको हम कोलेटरल सर्कुलेशन कहते हैं। और जैसे कोरोनरी आर्टरीज की मैंने एग्जांपल दी थी कि थ्रोम्बोसिस हो जाता है वन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज की, और उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो जाता है। हेमोरल कंट्रोल इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स एंड द आयंस। वेसोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंसेस है जैसे नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एंजियोटेंसिन, वेसोप्रेसिन और एंडोथेलियम। और वेसोडाइलेटर सब्सटेंसेस जो अपने ब्लड में पड़े हुए हैं, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और नाइट्रिक ऑक्साइड। एंजियोटेंसिन 2 है, ये पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर है, और वेसोप्रेसिन है वो एडीएच है जैसे, और वो इंक्रीज करता है। एंडोथेलियन पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर है, और ब्रेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस है जैसे ब्रेडिकाइनिन, और वो ये पावरफुल वेसोडाइलेटर होता है। इसीलिए आप में जब हिस्टामिन रिलीज होता है या जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन आता है तो हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन रिलीज होता है, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि आपकी एडीमा फॉर्मेशन हो जाता है, या इंक्रीज कैपेबिलिटी परमेबिलिटी होती है, और एलर्जिक रिएक्शन में इम्पोर्टेंस प्ले करता है। ओके, सो कुछ केमिकल फैक्टर्स हैं जैसे वेसोडाइलेटर्स में पोटेशियम, मैग्नीशियम, इंक्रीज हाइड्रोजन आयन या कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ we'll stop over here. I'll take the attendance.